Hello students, myself Dr. Vinita Rathod, Associate Professor of Zoology at SMB Government PG College, Nathadwara. In this present video, we will discuss about the general characteristics of phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom, including about 1 crore 13 lakh 40,000 species in all habitats, which constitutes about 83% of all known species of the animals. Besides these, many arthropods are not yet identified. Some prominent groups of arthropods are insects, crabs, spiders, bees, ants, millipedes, shrimps, centipedes, etc. Among them, insects form the single largest class of phylum Arthropoda. जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है, जिसमें लगभग 1,13,40,000 जंतुओं की प्रजातियां विभिन्न हैबिटेट्स में उपस्थित होती हैं। संपूर्ण जगत के अंदर जितने भी जो जीव हैं, उनका लगभग 83% आर्थ्रोपोडा के जीवों के द्वारा ही निर्मित होता है। इनके अतिरिक्त अभी कई ऐसे आर्थ्रोपोड्स और हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन होना शेष है। जो मुख्य आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं, उनमें कीट, केकड़े, मकड़ियां, मधुमक्खियां, चींटियां, मिलिपेड्स, श्रिम्प्स और सेंटीपीड्स आदि आते हैं। अगर आर्थ्रोपोडा में ही हम देखें तो इंसेक्टा क्लास के जीव फाइलम आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ एनिमल्स बनाते हैं। इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में आर्थ्रोपोडा के प्राणी उपस्थित हैं। The word arthropoda is derived from two Greek words in which the first word is arthros, which means jointed, and the second word is podos, which means legs. So arthropods are the animals in which jointed appendages or jointed legs are present. It is a phylum of triploblastic hemocoelomic segmented invertebrates having head, thorax, and abdomen, a chitinous exoskeleton, and jointed legs and appendages are present in them. The triploblastic animals, it means they are derived from three embryonic germ layers, that is ectoderm, endoderm, and mesoderm. Hemocoelomic means these are the individuals in which the coelom is filled with some fluid. Segmented invertebrates, their body is divided into three distinct parts, that is head, thorax, and abdomen. They are covered with an exoskeleton which is made up of chitin, and they have jointed legs for locomotion and jointed appendages for various purposes. Most successful phylum on the earth that has ever existed is phylum Arthropoda. Arthropods were first studied by Aristotle. Von Siebold coined the term Arthropoda. So arthropod is successful animal group which show a great variety of adaptations. Among them, some live in aquatic environments, some inhabit in terrestrial habitat, and others are adapted for एरियल हैबिटेट्स। आर्थ्रोपोडा शब्द का विकास ग्रीक भाषा के दो शब्दों के द्वारा हुआ है, जिसमें प्रथम शब्द आर्थ्रोस है, जिसका अर्थ है खंड युक्त, और दूसरा शब्द पोडोस है, जिसका अर्थ है उपांग या चलन टांगे। अर्थात आर्थ्रोपोडा के जीव वे जीव हैं जिनमें जॉइंटेड या खंडित उपांग तथा खंडित पाद पाए जाते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिजनन स्तरीय हैं, जिनके अंदर हीमोसीलोम उपस्थित होता है और इनका शरीर खंडित होता है, जो कि 3 भागों में विभाजित होता है: सिर, वक्ष तथा उदर। इन जंतुओं में बाह्य कवच काइटिन का बना हुआ होता है और पाद और उपांग खंडित होते हैं।
आर्थ्रोपोडा संघ पृथ्वी पर सबसे सफलतम जीवों का संघ है। आर्थ्रोपोडा को सबसे पहले अरस्तु ने स्टडी किया था और आर्थ्रोपोडा शब्द सबसे पहले वॉन सीबोल्ड ने दिया था। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव उन सफलतम जीवों का समूह है जिसमें अत्यंत अधिक अनुकूलन पाए जाते हैं। ये जीव सभी तरह के आवासों में रहने हेतु अनुकूलित होते हैं। बहुत सारे जीव इसके जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। यह जल स्वच्छ जल भी हो सकता है अथवा समुद्री जल भी हो सकता है। बहुत सारे इसमें स्थलीय हैं जो कि पृथ्वी पर रहने के लिए अनुकूलित है और इनमें से कई ऐसे जीव हैं जो एरियल हैबिटेट यानी कि वायु में रहने के लिए भी अनुकूलित होते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। Arthropods are cosmopolitan in distribution and found in aquatic, terrestrial, and aerial habitats. Some are ectoparasite and vectors of various diseases. These animals have organ system level of organization. Their body is triploblastic. It means it is generated from 3 embryonic germ layers. They are ectoderm, endoderm, and mesoderm. Their body is bilaterally symmetrical and they are metamerically segmented animals. The special feature of the arthropoda is that their body have jointed appendages which are modified to different structures to perform different functions like jaws, gills, walking legs, and paddle. There are usually one pair of appendages to सोमाइट। आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं वो सर्वव्यापी हैं। ये जलीय, स्थलीय और वायवीय सभी तरह के आवास में उपस्थित होते हैं। इनमें से कुछ बाह्य परजीवी के रूप में तथा कुछ विभिन्न बीमारियों के लिए वाहक का कार्य भी करते हैं। इन जंतुओं का विकास अंग तंत्र कोटि का शारीरिक संगठन रखता है। इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित होता है और ये त्रिजनन स्तरीय हैं, अर्थात इनके शरीर का विकास भ्रूणीय अवस्था की 3 विभिन्न परतों के द्वारा होता है जिन्हें हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म कहते हैं। इनका शरीर विखंडी रूप से सखंड होता है। ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। इनके संपूर्ण शरीर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इनकी बॉडी पर खंडित उपांग पाए जाते हैं, संधित उपांग पाए जाते हैं। प्रायः एक शरीर खंड में एक जोड़ी जबड़ों, गलफड़ों, टांगों इत्यादि के विविध कार्यों को करने में सक्षम उपांग उपस्थित होते हैं। Their body is covered with chitinous exoskeleton which is shed at intervals called ecdysis or molting. This ecdysis or molting is essential for growth and development of these individuals. Their body is divided into 3 distinct parts: head, thorax, and abdomen. Sometimes, in few of the animals, the head and thorax fuse together to form cephalothorax. This is the first group to develop a true head which contains sense organs and feeding organs specialized for their particular habitats. आर्थ्रोपोडा के जीवों में निर्जीव काइटिनी क्यूटिकल का बहिकंकाल उपस्थित होता है जिसे शारीरिक वृद्धि एवं विकास हेतु समय समय पर निर्मोकोत्सर्जन या एक्डाइसिस या निर्मोचन के द्वारा उतार दिया जाता है। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। सिर और वक्ष प्रायः संगलित होकर सिरोवक्ष की रचना करते हैं। इन एनिमल्स में विशेष तौर पर सिर के ऊपर सेंसरी ऑर्गन्स या संवेदी अंग पाए जाते हैं जो कि इनकी विभिन्न हैबिटेट्स जहां पर ये आवास करते हैं उनके लिए अनुकूलित होते हैं। Arthropods are
hemocoelomate. The coelom or the body cavity is filled with blood or fluid. Their muscles are mostly striated muscles. Usually, they are capable of rapid contraction. Their head bears a pair of compound eyes and antenna as photoreceptor and tactile organ. Locomotion takes place with the help of jointed appendages. These animals have a complete digestive system which is having complete alimentary canal which starts from mouth and ends with the anus. The alimentary canal of these animals is usually straight and it is very well developed. Mouth parts of arthropods are adapted for various modes of feeding like chewing, biting, sponging, piercing and siphoning. आर्थ्रोपोडा के जीवों में वास्तविक प्रगुहिका समानित और अधिकांशतः रुधिर से भरी हुई रुधिर गुहा में परिवर्तित हो जाती है। इनकी मांसपेशियां अधिकतर रेखित होती हैं और सामान्यतः शीघ्र संकुचन करने में सक्षम होती है। इनके सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र तथा एक जोड़ी एंटीना उपस्थित होते हैं। संयुक्त नेत्र फोटोरिसेप्टर्स या प्रकाशग्राही होते हैं और एंटीना स्पर्श की संवेदनाओं को ग्रहण करने में सक्षम होती हैं। इन जीवों में गमन हेतु संधित उपांग पाए जाते हैं। इनका पाचन तंत्र पूर्ण प्रकार का होता है जिसमें आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर के गुदा पर अंत होती है। मुख उपांग विविध प्रकार के अशन स्वभावों के लिए अनुकूलित होता है। Circulatory system of arthropods is of open type, that is, they do not have blood vessels and the blood enters directly into body chambers. The blood of these animals is usually colorless. Respiration in arthropods takes place by general body surface or gills as in case of the animals which belongs to class Crustacea, or through trachea like in insects, Diplopoda and Chilopoda, or through book lungs as it is found in spiders or arachnids. Excretion takes place through Malpighian tubules in terrestrial forms, and green glands or coxal glands are found in aquatic animals for the process of excretion. The aquatic forms are ammonotelic in nature. It means they excrete ammonia as the main excretory material, while in terrestrial forms the main excretory material is uric acid, so the terrestrial forms are termed as uricotelic organisms. आर्थ्रोपोडा के जीवों में परिसंचारी तंत्र खुला प्रकार का होता है जिसमें एक पृष्ठीय प्रकोष्ठित हृदय, धमनियां और रुधिर कोटर या रुधिर प्रगुहा उपस्थित होती है। सामान्यतया इन जीवों का रुधिर रंगहीन होता है। इन जीवों में श्वसन की क्रिया हेतु शरीर का जो सामान्य सतह है वह भी श्वसन करने में सक्षम होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत सारे जीवों में ये देखने को मिलता है, या श्वसन हेतु गलफड़े और गिल्स पाए जाते हैं, जैसा कि उदाहरण क्रस्टेशिया के जंतुओं का है। कुछ जीवों में ट्रैकिया अर्थात श्वास नलियां उपस्थित होती हैं, जो कि हमको इंसेक्टा, डिप्लोपोडा और चिलोपोडा के अंदर देखने को मिलती है, एवं कुछ जीवों में पुस्तक फुफ्फुसों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया संपादित की जाती है, जैसा कि मकड़ियों या एरेक्निडा के जंतुओं में हमको देखने को मिलता है। इनमें उत्सर्जन हेतु उत्सर्जी अंग के रूप में ग्रीन ग्रंथियां या मैल्पीजी नलिकाएं उपस्थित होती हैं। इनके जो जलीय जीव हैं वो एमोनोटेलिक कहलाते हैं, क्योंकि उनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का शरीर से निष्कासन किया जाता है, किंतु जो स्थलीय जीव होते हैं वे यूरिकोटेलिक हैं, अर्थात इन जीवों में मुख्य
नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर यूरिक एसिड का स्रावण किया जाता है। Nervous system of arthropods is of annelidian type, which consists of a dorsal brain and a double ventral nerve cord. Sensory organs include antenna, sensory hair for touch, and chemoreceptors, simple and compound eyes, auditory organs as they are found in insects, and statocyst which is present in crustacean. These animals are unisexual animals. It means sexes are separate in these arthropods. The male and female individuals are two separate individuals. The fertilization is either internal or external, which takes place either in the outer environment or it may take place in the body of females. They are either oviparous or ovoviviparous. Their development may be direct or it may be indirect. When the development is direct, there is no larval stage, but if the development is indirect, various larval stages are included in their life cycle. Parental care is often very well marked among some of the arthropods. आर्थ्रोपोडा के जीवों का तंत्रिका तंत्र प्रारूपी एनिलिड प्रकार का होता है, जिसमें तंत्रिका वलय से जुड़ा एक पृष्ठीय मस्तिष्क और एक दोहरा अधर तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। संवेदी अंगों में सरल एवं संयुक्त नेत्र, रसायनग्राही और स्पर्शग्राही एवं संतुलनकारी तथा श्रवण अंग उपस्थित होते हैं। इन जीवों में नर एवं मादा प्रायः पृथक पृथक होते हैं। इन जीवों में जननांग युग्मित होते हैं एवं वाहिनियां भी युग्मित होती हैं। इन जीवों में निषेचन की प्रक्रिया प्रायः मादा जंतु के शरीर के अंदर होती है, जिसे कि हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। कुछ में निषेचन की प्रक्रिया बाह्य निषेचन अर्थात शरीर के बाहर पूर्ण की जाती है। ये जीव सामान्यतया अंडे देने वाले अर्थात अंड प्रजक होते हैं। कुछ जीव इसमें अंड सजीव प्रजक या ओवोविविपैरस भी होते हैं। इनका परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से देखने को मिलता है। कुछ जीवों में जिनमें प्रत्यक्ष विकास होता है, उनमें कोई लार्वा अवस्था नहीं होती है, किंतु जिन जीवों में अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, उनमें एक से अनेक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। इनके कुछ जीवों में अनिषेक जनन अर्थात पार्थिनोजेनेसिस भी देखने को मिलता है, अर्थात बिना निषेचित हुए अंडा एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि हम हनी बी या मधुमक्खियों में देखते हैं। इन जंतुओं में प्रायः पैतृक देखभाल सुनिश्चित होती है। So with this we complete the general characteristics of phylum Arthropoda. In the next video we will discuss about the classification of phylum Arthropoda.